Hello dear students, I hope you are very well versed with our last topic, that was tariff, partial equilibrium analysis and general equilibrium analysis. Now we are going to cover non-tariff barriers. Once again, this module is extracted from EPG Pathshala by Professor H.C. Pokhriyal, Dr. Jaswinder Singh, Dr. Jatinder Beer Singh. I am highly thankful to them for providing such informative contents. It is a great help in the time of crisis, and because of these rich contents I am able to make my students very well aware about some topics. So today we are going to cover non-tariff barriers. During the module you will able to understand what is the meaning of non-tariff barriers, what are the types of non-tariff barriers, what are the welfare effects of various barriers, and we will able to differentiate between quota and tariff, and what are the significance of technical barriers to trade. As you already know, that international trade enables domestic consumers to choose from large numbers of goods and reduce the cost of those goods which are produced with increased competition and allow domestic industry to send their product to international market. So it is pretend to be beneficial because it improve consumer welfare, it improve producer profits, it increase competition, and it increase the availability of goods. But the concept of free trade is not widely accepted, and sometimes it is not considered as beneficial to all the parties. So sometimes countries protect their trade. They are not in favor of free trade, rather they restrict trade through various barriers. One barrier which is most important, that is tariff, which we have studied in the previous module. The General Agreement on Tariff and Trade maintains that overall level of tariff should be reduced all over the world, and after that all the member of GATT they reduce their tariff in phased manner, but टैरिफ की जगह फिर वो दूसरे इन्वेंटिव वेज ले आए जिनके थ्रू उन्होंने अपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया. तो टैरिफ के अलावा जो बैरियर्स होते हैं, इन्वेंटिव मेजर्स देशों ने अडॉप्ट करे, उनको हम नॉन टैरिफ बैरियर्स की कैटेगरी में रखते हैं. So what are the non-tariff barriers? Non-tariff barriers are the government policy other than tariff that tend to distort trade. These refer to restriction resulting from prohibition conditions, specific market requirement that made product imports and export difficult or costly. Tariff के अलावा और जितने भी वेज हैं जिनके थ्रू ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ट्रेड को प्रोहिबिट किया जाता है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डिफिकल्ट की फ्लो को कॉस्टली बनाया जाता है या डिफिकल्ट बनाया जाता है, उन सब पॉलिसीज को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को हम नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स. सबसे इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट कोटाज, voluntary export restraints, export subsidies, dumping, and technical barriers to trade. So what are import quotas? The one of the most important restrictive form of protection is quota. कोटा में इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि इतना डेफिनेट लेवल ऑफ क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका कोटा डिसाइड कर दिया जाता है, और उतने सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स एनुअल बेसिस पे कोई कंट्री इंपोर्ट कर सकता है. तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि जब कोटा इंप्लीमेंट किया जाता है तो किस तरीके से उसके पार्शियल इफेक्ट आते हैं, जैसे हमने टैरिफ के केस में पढ़ा था. दिस इज सप्लाई कर्व ऑफ नेशन.
SX, DX इज द डिमांड कर्व ऑफ दैट नेशन जिसने कोटा इंप्लीमेंट किया है। इनिशियली वर्ल्ड प्राइस 1 है, जिसपे ये AB जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसका 5 यूनिट, और टोटल कंजम्पशन जो है वो 35 है। 35 में से 5 डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, दैट मीन्स 30 जो है इसके टोटल इंपोर्ट्स हैं। 30 यूनिट्स ये देश इंपोर्ट कर रहा है। नाउ इसने कोटा डिसाइड कर दिया इस कमोडिटी का एक्स का, कि ये देश एक साल में सिर्फ 15 यूनिट एक्स की इंपोर्ट कर सकता है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, जो टोटल कंजम्पशन है वो 25 हो गया, और जो प्राइसेस हैं वो बढ़ के 2 हो गए। और यहाँ पे नया सप्लाई का नया जो हमारा डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन है वो ऐसे है। टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन 5 से बढ़ के 10 हो गया है कोटा लगाने से। डीजी जो है दैट इज कोटा, डीजी वॉल्यूम क्या है, कोटा है, 15 यूनिट को दिखा रहा है ये। तो ये इंपोर्ट कर रहा है, और जो 10 यूनिट इंपोर्ट पहले ज्यादा कर रहा था वो अब कम हो गया। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ गया 5 यूनिट, 10 यूनिट इंपोर्ट्स कम हो गए हैं जो बाहर से ये इंपोर्ट कर रहा था। तो इस तरीके से जो टोटल कंजम्पशन है वो 35 से कम होकर 25 हो गया है, और इस 25 में से 10 यूनिट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और 15 यूनिट जो है इसका इंपोर्ट्स हैं। पहले इसके इंपोर्ट्स थे 30, अब हाफ हो गए हैं 15। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब इस देश ने कोटा लगाया तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आया। अब अगर यहाँ पे हम टैरिफ और कोटा का एक थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर डिमांड बढ़ जाए इस नेशन में, D-X हो जाए 2 प्राइस पे, तो अगर टैरिफ हमने लगा रखा होता, टैरिफ कितना 100% लगा रखा होता तो 1 से 2 ही होता प्राइस भी। तो 100% टैरिफ लगाते तो इनिशियल सिचुएशन तो सेम होनी थी, जो DG वाला है ये डबल प्राइस होने से क्वांटिटी डिमांडेड 25 होनी थी, 25 में से 15 यूनिट इंपोर्ट हो रही थी, 10 यूनिट डोमेस्टिक, ये सेम है। लेकिन अगर डिमांड बढ़ती तो जो बढ़ी हुई डिमांड है वो जी के वो इंपोर्ट से हम कवर कर सकते थे, क्योंकि उतना 2 पे इंपोर्ट अलाउड है, वो फ्री है इंपोर्ट पे, क्वांटिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 2 प्राइस पे डिमांड जो है वो के तक है, तो वो हम जी के जो डिमांड गैप था वो हम इंपोर्ट से कंप्लीट करते। लेकिन कोटा के केस में ऐसा नहीं है। कोटा के केस में क्या होगा, हमारा जो कोटा है एक हायर डिमांड पे वही सेम रहेगा जो D-G- से दिख रहा है, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। पहले तो प्राइस बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, इंपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इनिशियली तो सेम है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस 2.5 हो जाएगा। 2.5 प्राइस पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो HD से बढ़कर H-D- हो गया है, जो 10 से बढ़ के 12 हो गया है, और जो कोटा है वो हमारा सेम है D-G- 12.5 से 27.5। तो इस केस में, कोटा के केस में सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है, वो भी 2.5। लेकिन अगर यहाँ पे टैरिफ लगा होता तो टोटल जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है वो 10 यूनिट्स बढ़ जाती। यहाँ पे कितनी बढ़ी है, 2.5, पहले 25 थी फिर 27.5 हो गई है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कोटा और टैरिफ में। फिर वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट एक नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जिसमें जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो वॉलंटरली अपने एक्सपोर्ट को रिड्यूस कर देती है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो इंपोर्टिंग नेशन है, जो इंपोर्ट करने वाला नेशन है, वो उसको इंड्यूस करता है, उसको कन्विंस करता है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को कम करे, नहीं तो वो उस पे और रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। तो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स होते हैं जब देश खुद अपनी मर्जी से अपने एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है। क्यों क्रिएट किए जाते हैं,
Voluntary export restraints are often created because an exporting nation might agree to voluntarily comply because it may want to avoid damaging its relationship with the foreign government or country's consumer. कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके फॉरेन नेशन से रिलेशनशिप खराब हो, उसके कंज्यूमर से रिलेशनशिप खराब हो। तो अगर कोई नेशन चाहता है कि उसका ट्रेडिंग पार्टनर जो है वहां उसके यहाँ पे इंपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो कम करे, तो वो कंप्लाई कर लेते हैं। फिर जो VAR है वो इसलिए लगाए जाते हैं विद द रिक्वेस्ट ऑफ इंपोर्टर, ताकि जो इंपोर्टर है उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन मिल सके। और VAR इंपोर्ट कोटा की तरह ही काम किए जाते हैं, जहां पे कोटा में तो लाइसेंसेस दिए जाते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, और VAR में फॉरेन गवर्नमेंट्स को लाइसेंस दिए जाते हैं कि आप इतना एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर एक बहुत ही नोटेबल एग्जांपल है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स का, जापान का। जापान ने अपने नेशन में VAR इम्प्लीमेंट करे थे ऑटो एक्सपोर्ट्स में US 1980s में। अमेरिका ने बोला कि आप हमारे यहाँ आपके जो ऑटो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री को हैम्पर कर रहे हैं, तो आप इनको एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करें। तो जापान ने अमेरिकन प्रेशर में अपने ऑटो एक्सपोर्ट को वॉलंटरी रेस्ट्रेंट्स किया था। तो इस तरीके से जो US ऑटो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिल गई थी फ्रॉम हाई फॉरेन कंपटीशन। फिर नेक्स्ट नॉन टैरिफ बैरियर है सब्सिडीज। सब्सिडीज बेसिकली एक्सपोर्ट्स को दी जाती हैं। किसी भी फर्म को जो एक्सपोर्ट कर रही है, कोई इंडिविजुअल है जो बाहर चीजें बेच रहा है, उसको डायरेक्ट पेमेंट दी जाती है या टैक्स रिलीफ दिया जाता है या सब्सिडाइज लोन दिया जाता है, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी होती है ये। टैरिफ जैसे लगाया जाता है उसी तरीके से एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है, मतलब लमसम दे दिया कि 1 यूनिट पे 100 रुपीज हमारी सब्सिडी है। एड वोलोरम भी हो सकती है, उसकी वैल्यू पे भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है और एक्सपोर्टर को उस पॉइंट तक एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है जब तक डोमेस्टिक प्राइस जो है फॉरेन प्राइस को से ज्यादा रहते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव बन पाए इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट्स पे ये एलिगेशन लगता है कि वो अपने एक्सपोर्ट को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडीज देती हैं। सब्सिडी का इफेक्ट जो है वो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। DX/SX जो है वो नेशन 2 का डिमांड और सप्लाई कर्व है। फ्री ट्रेड प्राइस जो है वो PX है। Okay, we have short of time to complete the module. We will cover this diagram in the next video. Now we will go with other non-tariff barrier, that is local content requirement. Local content requirement क्या है? It is a regulation which have some definite fraction of final good should be produced. इसमें क्या है कि एक जो कंट्री है वो किसी भी प्रोड्यूसर को के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि उसको अपने प्रोडक्ट में लोकल कंटेंट्स को यूज करना है, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिले। फिर डंपिंग क्या होती है? डंपिंग होती है अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट पे लो प्राइस में बेचना और डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस पे बेचना। ये 3 तरह की होती है: स्पोर्डिक डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग एंड परसिस्टेंट डंपिंग। स्पोर्डिक डंपिंग क्या होती है? जब ओकेशनल सेल के लिए डंपिंग की जाती है कि एक बार सरप्लस प्रोडक्शन हो गया उसको सेल करना है। प्रीडेटरी डंपिंग होती है जानबूझ के बिलो कॉस्ट पे, ताकि फॉरेन कॉम्पिटिटर को मार्केट से बाहर निकाला जाए और फॉरेन मार्केट में मोनोपोली एक्वायर करे जाए। परसिस्टेंट डंपिंग क्या होती है? कंटिन्यूअसली लो प्राइस पे सेल करना इंटरनेशनल मार्केट में एज कंपेयर टू
डोमेस्टिक मार्केट। तो इसके कारण भी यही है कि एक सरप्लस प्रोडक्शन को बेचने के लिए, फॉरेन मार्केट में कंपटीशन के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। फिर एक